So beta, let us start the session for today. In our last class, we completed the vocabulary junction of chapter number 12, where we learned about the personification. And the next section is pronunciation junction. In this section, we would be revising the concept of intonation. I hope you all have you remember about the intonation. What are intonation? Intonation इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना? Yes, sir. So what is intonation? Intonation क्या होता है? Speaking. बेटा कौन इंटोनेशन के बारे में बता सकता है? इंटोनेशन आखिर है क्या? किसी को भी नहीं ध्यान है? इंटोनेशन मींस क्या होता है? यस मुस्कान। Yes, sir. Speaking. यस मुस्कान बताइए। अभिषेक आपने बताया दैट इज रॉन्ग। मुस्कान बताइए। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। आप एक बार माइक निकाल के दोबारा लगा दीजिए। Authorized tone of our speech is called intonation. Pardon, please. The fall-rise tone of our speech is called intonation. Intonation is a type of मतलब that intonation is a way that how we talk. जो हम बोलते हैं जिस तरीके से उतार चढ़ाव। मुस्कान ने फिलहाल कुछ हद तक सही बताया कि जो भी फॉल एंड राइज होता है हमारी आवाज में, हमारी टोन में, that is called the intonation. And how many types are there? How many types of intonation is there? Sir, 2. Sir, 2. Till now you all have learned about 2 types of intonation. What are those? Sir, falling, rising tone, and falling tone and rising tone. Today we are going to read the third type of intonation. That is fall and rise. या rise fall या fall rise बोले, यानी एक ही सेंटेंस में जब आपका टोन राइज या राइज होके फॉल होता है या फॉल होके राइज होता है, तो यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. तो all those things we would be reading here. फिलहाल let us start from your book. First of all, we need to read the conversation which is happening between a mother and her son. Can you read this one? अनुभव शुक्ला पढ़िए तो इसको. Mother, are you ready? Son, taste a cupcake. How is it? Do you like it? Son, wow, this is delicious. Okay. Mother, are you ready, son? Taste a cupcake. How is it? Do you like it? Then son is replying, wow, this is delicious. Do you remember what intonation is? क्या आपको ध्यान है ये किस तरह का intonation है? Are you ready? Are you ready, son? Taste a cupcake. How is it? How is it में आप लोग बताएं क्या falling tone है या rising tone है? falling tone. Falling tone है. जब are you ये अच्छा है, यहाँ पे नीचे टेबल पे दिया भी हुआ है. Are you ready, son? Are you अगर यहाँ पे सिर्फ होता are you ready, तो are you ready मतलब आपका फॉलिंग हो जाता है, लेकिन जो सन आने की वजह से यहाँ पे सन पे आप कहीं ना कहीं अपनी आवाज में अपने टोन में चेंजेस ला रहे हैं, वहां पे राइज कर रहे हैं. Are you ready, son? That means कि this is fall rise tone. Here we are having fall rise kind of intonation. It is mentioned in the table also. So what we have to. Yes, sir. अच्छा intonation क्या होता है? Already we have talked before at the beginning of this session. Can you imagine how Yes, this sir. conversation would sound? Let us look at the tone of each sentences. Do you like it? Do you like it? Wow, this is delicious, mom. अब यहाँ पे wow पे भी आपका कहीं ना कहीं राइज है. wow को तो आप ऊंचे स्वर में बोलेंगे ना, wow. This is delicious, mom. And this is delicious, mom. या this is delicious पे आपका फॉल हो रहा है, बट मॉम पे फिर से राइज हो रहा है. यानी जो आपका फॉल एंड राइज है वो अप एंड डाउन चलता रहेगा.
जो टोन में, तो दिस काइंड ऑफ टोन विल बी नोन एज अ फॉल राइज टोन या फॉल राइज इंटोनेशन. ओके, Yes, sir. सो अब यहाँ पे इंटोनेशन का डेफिनेशन भी दिया गया है फॉर योर रिकैप. लेट्स रीड दिस वन. इंटोनेशन इज द टोन ऑफ आवर स्पीच. इंटोनेशन क्या है? अभी आपने कुछ बोला था स्पीकिंग है, और आप मुस्कान ने कुछ बोला फॉल एंड राइज है. अगर डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो आप सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं इंटोनेशन इज द टोन ऑफ आवर स्पीच. जो हम बोलते हैं उसका टोन है. टोन आपका अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है. इट इज ऑन यू ना. टोन आपका हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है. अब राइजिंग टोन अगर आपका लो से हाई हो रहा है तो दैट इज द राइजिंग टोन. अगर ऊपर लो से, अगर हाई से लो हो रहा है, जैसे पूछा जाए हाउ यू, अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, दैट मीन्स अब यहाँ पे राइजिंग से फॉल होगा. जब कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो वहां पे राइजिंग टोन होगा. लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है, अगर मैं आपको उसी में नाम ले लूं, डू योर होमवर्क अभिषेक, अभी मैं अभिषेक को भी जोड़ रहा हूँ कॉमा के बाद, तो दैट मीन्स कि वहां पे फॉल एंड राइज दोनों हो गया. तो ये थोड़ा सा हमें बोलते समय एक बार महसूस भी करना पड़ेगा, फील भी करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ इंटोनेशन इज देयर. सो इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन इज द टोन ऑफ आवर स्पीच. इट हेल्प अस एक्सप्रेस आवर फीलिंग व्हाइल स्पीकिंग. ओके, इतना क्लियर है? Yes, sir. Now let us recap about intonation and its type taught in the previous chapter. जो आपके इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ाया गया है, types of intonation. Let us talk about that. Intonation can be classified into 3 main types. वैसे फिलहाल अगर आप लोग सर्च करेंगे तो then you would be finding more than 3 types of intonation. But जो mainly है वो that is only 3 type. Mainly it has been classified. It has been divided into 3 main parts. What are those? The first one is the falling tone, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज इसको मेमोराइज करने का, रिकॉल करने का दिन है. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. ऑब्वियस ही बात है कि अब नेक्स्ट के बाद 8th की बुक आप लोग पढ़ेंगे. तो इंटोनेशन के बारे में हो सकता है कि आपको क्लास 8th में ना मिले. तो इंटोनेशन में क्या है? इंटोनेशन क्या है आपने ये पढ़ा. इंटोनेशन, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटोनेशन. फर्स्ट वन इज द फॉलिंग टोन. फॉलिंग टोन में कहां पे आपको दिखाई पड़ता है? ये मेनली देखो हमेशा 100% नहीं है, लेकिन प्रायः आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली इट इज सीम्स इन द स्टेटमेंट्स, इट इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट्स या WH टाइप क्वेश्चंस. व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम में आपका फॉलिंग टोन होता है. हाउ आर यू आपका फॉलिंग टोन है. अगर मैं बोलूं हाउ आर यू अभिषेक, तो यहाँ पे फॉलिंग टोन नहीं है, क्योंकि हाउ आर यू अगर होता तब तो होता फॉलिंग टोन. बट हाउ आर यू अभिषेक बोल दिया तो अभिषेक पे हमें एम्फसाइज करना पड़ रहा है. हमें वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें ताकत लगानी पड़ रही है, किसी का नाम ले रहे हैं. तो दैट मींस दैट इज अ फॉल एंड राइज. तो WH क्वेश्चन टाइप ऑफ यहाँ पे लिखा है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ क्वेश्चन तक ही सीमित है. ये आपके सेंटेंस की प्रकृति, सेंटेंस के नेचर या सेंटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये आपका फॉलिंग टोन में आएगा या राइजिंग टोन में आएगा या फॉल एंड राइज में आएगा. फिलहाल जो फॉलिंग टोन होता है वो इट इज मतलब फ्रीक्वेंटली इट इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट, WH टाइप क्वेश्चंस और गिविंग कमांड्स. कमांड्स अगर देना हो कि शट योर माउथ, ओपन योर माउथ, तो लेट्स से कि म्यूट योरसेल्फ. तो कोई भी कमांड अगर आप दे रहे हैं, कोई भी कमांड अगर कोई दे रहा है, देयर दिस फॉलिंग टोन कैन बी फिगर आउट. ये फॉलिंग टोन वहां से हमें मिल सकता है एग्जांपल्स के रूप में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी फॉलिंग टोन मिलता है, बट ये डिपेंड्स करता है सेंटेंस के ऊपर किस तरह का. अगर आपका सरप्राइज वाला है तब तो वहां पे आपको फॉलिंग टोन नहीं मिलेगा. फॉलिंग टोन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कन्विक्शन. जो फॉलिंग टोन है कहीं ना कहीं वो हमें कन्विक्शन मींस क्या होता है? हमें धारणा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो समय लगे हमें 3-4 तरीके हैं ये कहने के कन्विक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए. आप अपने मन में, आपके मन में क्या आपने धारणा क्या बना रखी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए फॉलिंग टोन का यूज किया जाता है. फॉर द एग्जांपल देयर आर मेनी क्वेश्चंस, WH टाइप ऑफ क्वेश्चन बोला गया था. तो हाउ इज इट, आपका यहाँ पे WH टाइप वाला क्वेश्चन तो नहीं है, बट दिस इज आल्सो द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लेकिन अब वो सेंटेंस हम पढ़ के देखेंगे कि क्या ये फॉलिंग टोन है. हाउ इज इट, ऑब्वियसली इट इज अ
फॉलिंग टोन, इट पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं आप, हाउ को ज्यादा तेजी से बोल रहे हैं, हाउ को थोड़ा सा लाउड और क्लियर वे में बोलना चाह रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. The stars are shining. This is one of the statement. This is not a WH type question. This is not a command. This is not exclamatory sentence. This is a simple statement. क्या बोला गया है? The stars are shining. The stars are shining. जो stars है वो shine कर रहे हैं। लेकिन shining पे तो ऐसा नहीं बोला ना, the stars are shining. अगर यहाँ पे ऐसा तो नहीं पढ़ा जाता, the stars are shining. स्टार जो है वो शाइन कर रहे हैं। मीन्स हम कहीं ना कहीं राइजिंग, हमारा जो टोन है वो फॉल हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है, यानी नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। ओके? Yes, What is sir. the camera? What is the camera? Where पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कैमरा पे उतना नहीं फोकस कर रहे हैं। Sit down. Here again you would be having the following intonation. The weather is so beautiful. He does not have a car. So these are the some of the examples of the falling tone. So is there any confusion falling tone को लेकर के? No, sir. याद रहेगा? No, sir. बेटा इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए ध्यान से आपको ये एग्जांपल से पढ़ना है। आपको कोई सेंटेंस स्वयं नए सेंटेंस देखें, अब सेंटेंस में आपको देखना होगा कि वो आपका फॉलिंग टोन है या राइजिंग टोन है या फॉल एंड राइज है। द सेकंड टाइप ऑफ इंटोनेशन इज द राइजिंग टोन दैट इज यूज्ड। ये मतलब राइजिंग टोन क्या है ये तो मैं समझा दिया हूँ कि आवाज आपका जहाँ पे शुरू में आपका थोड़ा सा लो पिच रहता है, लेकिन बाद में आप कहीं ना कहीं हाई पिच की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे कि कभी ये अक्सर किस तरह के सेंटेंस के लिए होता है, ये जब कभी आप इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, लाइक सरप्राइज का हो, डाउट का हो, हेजिटेशन हो। अब होता है ना, डाउट होता है कि या सरप्राइज हो, मतलब लेट्स से कि आज अभी इलेक्शन कल ही आया है, कुछ लोग हार गए होंगे, कुछ लोग जीत गए होंगे, हो सकता है बहुत सारे सरप्राइज हुए हो सकता है डाउट भी आ गया हो मन में, आखिर ये कैसे जीत गया, विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि ये भी जीत सकते हैं, तो डाउट भी हो रहा होगा। तो ये सरप्राइज और डाउट के बहुत सारे एग्जांपल्स आजकल के सेंटेंस आजकल आपको देखने को मिले होंगे। किसी ने आपके सामने आया हेजिटेश, अगर कोई आके पूछ ले कि आपने मुझे वोट दिया था या नहीं, और आपने नहीं दिया है, और तब तो वहां पे आप हेजिटेट भी होने लगेंगे। तो ऑल्सो यू कैन have the some of the example of hesitation in this. Lack of the confidence, obviously if you are not casted your vote to that particular candidate, तो obviously whatever you would be speaking, जो कुछ भी आप बोलेंगे वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ नहीं रहेगा। There will be a lack of confidence, कॉन्फिडेंस की कमी भी रहेगी। फिलहाल ये आज का एग्जाम्पल है, वैसे मैंने बोल दिया। आपको जो ध्यान रखना है, राइजिंग टोन आपको लगभग कहाँ पे मिलता है, जब आप सरप्राइज वाला हो, यानी जब आप अचंभव हो। अब यहाँ पे तो बड़े एग्जाम्पल के रूप में बड़े बड़े सेंटेंस दिए हैं, लेकिन कोई सरप्राइज का कोई आप लोग स्वयं सोचें, कोई एग्जाम्पल दें, क्या हो सकता है। एक होता है ना व्हाट, क्या, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड में तो एक तरीके से क्वेश्चन हुआ, वहां पे तो आपका फॉलिंग टोन आ रहा है। लेकिन अगर व्हाट जैसे होता है ना सरप्राइज करके, इट्स अमेजिंग, तो अमेजिंग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इट्स वहां पे कहने के सरप्राइज या फिर डाउट है तो भी आपका वहां पे राइजिंग टोन ही होगा, हेजिटेशन होगा तो भी वहां पे राइजिंग टोन, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, देन आल्सो यू वुड बी गेटिंग, मतलब वी वुड बी figure out the rising tone from that kind of sentence. It is also used to express interest in a topic or conversation. ये जो rising tone का जो यूज है वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट अगर आपका है तो वहां पे भी देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, लेट्स से कि आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई टॉपिक अगर हमने छेड़ दिया और वहां पे तब इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है, वहां पे जो टोन होती है आदमी की थोड़ा सा ज्यादा चटक हो जाती है, उसको ज्यादा मजा आने लगता है, ज्यादा अच्छे से बोलता है। लेकिन बिना मन के जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता उस वही सेम टॉपिक, तो उसका टोन कहीं ना कहीं स्लो पिच होता है, तो वहां पे फॉलिंग टोन, वही सेंटेंस सेम का फॉलिंग टोन के एग्जांपल हो जाता है। लेकिन जो प्रॉपर वे है तरीका बोलने का, जो आपका इंटरेस्ट जो है एक्सप्रेस करने के लिए किसी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन या सरप्राइज शो करने के लिए, हमें राइजिंग टोन फिलहाल यूज करते हैं। इट इज मोर ओवर यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट एंड सजेशंस एंड आस्क यस और नो क्वेश्चन। यस या नो क्वेश्चन वाला
यस या नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस पूछने के लिए भी राइजिंग टोन का यूज किया जाता है। आर यू एग्री? अभी मैं पूछा आर यू एग्री तो आपने बोलेंगे यस या नो, तो आर यू एग्री? आर यू स्लीपिंग? Yes. आई थिंक यस। मुझे लग रहा था कि nobody are responding, that means कि students are sleeping। कुछ ज्यादा बड़ी कहानी हो गई। तो while for asking yes or no type of questions also we use this kind of intonations। कुछ सजेशन देना हो कि कोई हार गया हो, बता दो अब की बार मुझे अब मतलब मेरे हिसाब से काम करना है, तुम्हें ये करना चाहिए था, ऐसा करते तो ठीक है। यू शुड गो इन दिस वे, यू शुड डू दिस वन। तो जो अब वहां पे ऑब्वियस ही बात है कि आपका टोन जो लास्ट में कहीं ना कहीं ज्यादा उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं बात की, वहां पे ज्यादा आप क्लियर वे में या लाउड वे में बातें कर रहे हैं, तो वहां पे आपका राइजिंग टोन का एग्जांपल मिलेगा। कुछ एग्जांपल आपके बुक से भी लेते हैं। डू यू गो देयर ऑफन? आर यू श्योर अबाउट दिस? यू गो देयर ऑफन, क्या आप वहां पे प्रायः जाते हैं, ऑफन जाते हैं, ऑफनली? आर यू श्योर अबाउट दिस, क्या आप श्योर हैं अबाउट दिस? अबाउट दिस पे ज्यादा फोकस है। आई हियर द सुपरमार्केट इज गेटिंग रेनोवेटेड, आई हियर द सुपरमार्केट इज गेटिंग रेनोवेटेड। सुपरमार्केट है उसका रेनोवेशन हो रहा है, उसका नवीनीकरण हो रहा है। could you move your car please? could you move your car please? तो प्लीज पे आप ऑब्वियसली आपको एम्फेसाइज करेंगे। कोई भी रिक्वेस्ट किया जाता है तो वहां पे आपका राइजिंग टोन ही रहता है लास्ट में। अगर लास्ट में आप प्लीज यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे प्लीज पे हमेशा एम्फेसाइज किया जाता है। शुरू में भी आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अब कहाँ पे प्लीज यूज कर रहे हैं, प्लीज को बिना एम्फेसाइज के प्लीज नहीं माना जाता। ऐसा आप उसको क्लियर और थोड़ा सा लाउड बोलें जिससे लोगों को समझ में आए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज एक ऐसा वर्ड है जहां पे आपको एम्फेसाइज करना चाहिए। आई थिंक यू शुड हीट द फूड बिफोर ईटिंग, आई थिंक यू शुड हीट द फूड बिफोर ईटिंग। Here is also the some of the example of the rising tone. Now move ahead on the third type of the intonation, that is a fall and rise. It is used at the end of the statement which express uncertainty or when the speaker has more information to add. It is also used for question tags and statements addressed to the specific people. किसी specific people को address करने के लिए, address करने का मतलब उनसे बताने के लिए या कोई instruction देने के लिए, कोई statement देने के लिए, या कोई question tag। question tag समझते हैं क्या होता है? क्वेश्चन टैग Yes, क्या sir. होता है, ध्यान है किसी को? किसी को नहीं पता है? क्या बात है, आप The कहते हैं। verb plus not cause as construction form. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या है, ये पता है? कोई एग्जांपल दे दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन टैग याद है। The wasn't, haven't. हाँ, ये बिल्कुल थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर रहे हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे से पढ़ाया गया 4th या 5th में। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा मैसेज कर देंगे तो मैं उसको खोज करके आपको लिंक भी भेज दूंगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स हैं, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आते भी हैं, तो उसको वो वीडियो आप प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। तो फॉल एंड राइज क्या होता है? फॉल एंड राइज का एग्जांपल जो है आपको इस तरह के सेंटेंसेस में मिलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल आपके बुक की तरफ से देखते हैं। वेयर आर यू गोइंग अनिल, हमने पूछा ना, कहा था ना वेयर आर यू गोइंग, अगर सिर्फ होता, अनिल का नाम नहीं लिया गया होता, तो शायद ये आपका राइज, आपका फॉलिंग टोन हो जाता। The falling वेयर आर यू tone गोइंग, होता. बट यहाँ पे अनिल आकर के फॉल एंड राइज कर दिया। तो वेयर आर यू गोइंग अनिल, द क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड मॉम, यू सेव द फाइल डिडंट यू। अब यहाँ पे आपका यू सेव द फाइल डिडंट यू, आपको जिस टेंस में आपने यहाँ पे लिखा है आई हैव टॉट यू ऑल, आई हैव टॉट यू ऑल, मैंने आप सभी को पढ़ाया है। अब इसको अगर आपका उसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या हो, हैवंट आई, तो आई डोंट सपोर्ट एनी फुटबॉल टीम एट द मोमेंट। यहाँ पे देखिए, आई डोंट सपोर्ट एनी फुटबॉल टीम एट द मोमेंट बट आई मे चेंज माई माइंड इन फ्यूचर। इज दिस योर कैमरा, इज दिस योर कैमरा। यहाँ पे जो आपका एरो है ये इंडिकेट कर रहा है आपका टोन का फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है। तो आई होप तीनों तरह के जो इंटोनेशंस हैं वो ध्यान रहेंगे।
कभी इन केस पूछा जाता है इंटोनेशन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इज देयर, फॉलिंग इंटोनेशन क्या है, आपका राइजिंग इंटोनेशन क्या है, या फिर फॉल एंड राइज इंटोनेशन क्या है, या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आपको मिल ही गया तो क्या उसमें पहचान पाने में फॉलिंग इंटोनेशन है या राइजिंग इंटोनेशन है या फॉल एंड राइज है, तो ये पहचानने में आसानी होगी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये देखते हैं। मार्क द इंटोनेशन इन दिस कन्वर्सेशन देन इनैक्ट इट आउट विद अ पार्टनर। आपको क्या करना है, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड जया, यू ऑल नीड टू मार्क द इंटोनेशन। इंटोनेशन आपको पहचानना है, मार्क करना है, फॉलिंग है या राइजिंग है या फॉल एंड राइज है। पहला, गुड मॉर्निंग जया, वेलकम बैक, आई होप यू हैड अ वंडरफुल वेकेशन। सेंटेंस आपका जहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा वही सेंटेंस माना जाएगा। तो पहला सेंटेंस क्या है, गुड मॉर्निंग जया, वेलकम बैक, आई होप यू हैड अ वंडरफुल वेकेशन। फॉलिंग, राइजिंग या फॉल एंड राइज, व्हाट टाइप ऑफ इंटोनेशन इज देयर? So falling tone. फॉलिंग है, आई होप यू हैड अ वंडरफुल वेकेशन। मैं आशा करता हूं बेटा अभी यहाँ पे आपको बोला गया गुड मॉर्निंग जया, वेलकम बैक। वेलकम पे भी फोकस्ड है, गुड पे भी फोकस है, आई होप पे भी फोकस है। थैंक यू मैम, यहाँ पे बोला गुड मॉर्निंग जया, जया पे तो आप सिर्फ इतना बोला गया होता गुड मॉर्निंग जया, तो आपका तो यहाँ पे फॉलिंग होता। वेलकम बैक फिर से आपका राइज हुआ। जहाँ पे ज्यादा सेंटेंसेस हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन बीच में ऐड करना हो, यहाँ पे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे सेंटेंसेस, एक तरीके से बहुत सारे क्लॉज एक साथ जोड़ रहे हैं। क्लॉज अगर कई सारे जुड़ जा रहे हैं तो वहां पे भी आपका फॉल एंड राइज ही होगा, मिलेगा। क्यों? गुड मॉर्निंग जया, वेलकम बैक, आई होप ये तीन सेंटेंस की तरह बिल्कुल बन गए, लेकिन तीन सेंटेंस मिलकर के एक ही सेंटेंस में आया है, तो यहाँ पे फॉल एंड राइज दोनों है। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए थैंक यू मैम, अब थैंक यू मैम के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो अब ये बताइए फॉलिंग है या राइजिंग है या फॉल एंड राइज दोनों है? सेंटेंस तो यही पूरा हो गया, फॉलिंग थैंक यू मैम, क्या होगा यहाँ पे? Fall and rise. फॉल एंड, यहाँ पे राइज कहाँ पे हो रहा है बाद में? थैंक यू मैम, Ma'am. मैम पे थैंक यू मैम, यू के साथ माँ बोलना शुरू कर देते हो बेटा, यहाँ पे केवल आपका फॉलिंग टोन है, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग एक्सरसाइज या कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगा। यस आई डिड, यस आई डिड, यहाँ पे भी फॉलिंग है। आई वेंट ऑन ए ट्रिप टू सिक्किम, अब सिक्किम पे यहाँ पे फोकस्ड है। आई वेंट ऑन ए ट्रिप अगर बोला गया होता आई वेंट ऑन ए ट्रिप, तब तो यहाँ पे फॉलिंग होता, लेकिन यहाँ पे सिक्किम विथ माई फैमिली, आई वेंट ऑन ए ट्रिप टू सिक्किम विथ माई फैमिली, सिक्किम पे भी एम्फसाइज किया गया, माई फैमिली पे भी, दैट मीन्स कि यहाँ पे फॉल एंड राइज है। फिर टीचर का कर्व से वंडरफुल, व्हाट डिड यू डू देयर? वंडरफुल, वंडरफुल ऑब्वियसली बात है कि बहुत अच्छा, यहाँ पे तो आपका राइजिंग है, बट व्हाट डिड यू डू देयर, आपका यहाँ पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो क्वेश्चन पूछा गया वहां पे आपका फॉलिंग टोन है। Yes, sir. We went tracking and played with ice ball. We went tracking and played with ice ball, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, आइस बॉल पे भी, तो यहाँ पे फॉल एंड राइज है। My brother and I even made a snowman, snowman पे भी फोकस किया गया। My brother and I even made a snowman, मेरे भाई और मैंने एक snowman बनाया, तो here also फॉल एंड राइज टोन दिख रहा है। That must have been fun, that must have been fun जया, अब ये जया आ गया, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपका क्या है, फॉल एंड राइज है। डिड यू विजिट एनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, यहाँ पे फॉल एंड राइज हो गया, फॉल एंड राइज टोन आ गया। नो मैम दे आर, अब नो मैम के बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पे फॉलिंग है। दे आर लोकेटेड टू हाई अप इन द माउंटेन्स एंड माई ग्रैंडमा इज नॉट इन ए स्टेट टू ट्रेवल दैट फार। फॉल एंड राइज है, बहुत लंबा इंफॉर्मेशन में, जितना लंबा सेंटेंस होगा उसमें फॉल एंड राइज ही हो जाएगा। बट आई एम श्योर वी विल विजिट देम एट नेक्स्ट टाइम, बट आई एम श्योर वी विल विजिट देम, बट आई एम श्योर वी विल विजिट देम एट द नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे भी बट आई एम श्योर, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, वी विल विजिट देम द नेक्स्ट, यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन एक तरीके से दो बातों को एक साथ जोड़ा गया है।
तो कहीं ना कहीं एक श्योर भी है और ये भी बता रही है कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो यहाँ पे फॉल एंड राइज यहाँ पे कहा जाएगा, फॉल एंड राइज टोन आपको दिखेगा। बट आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, वी विल विजिट देम द नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे भी आपका फॉल एंड राइज टोन आपको मिला। समझ में आ रहा है इतना? द लास्ट सेंटेंसेस, ओ माय, ओ यू मस्ट, दे आर ब्रीथ टेकिंग। ओ यू मस्ट, अब यहाँ पे तो आपका राइजिंग टोन है, ओ यू मस्ट, बिल्कुल तुम्हें करना चाहिए। दे आर ब्रेथ टेकिंग, तो यहाँ पे भी आपका ब्रेथ टेकिंग पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, तो ये भी आपका राइजिंग टोन होगा। तो टीचर ने जो लास्ट में दो बोले हैं, ये भी आपका राइजिंग टोन है, यहाँ पे भी आपका राइजिंग टोन ही है। ओ यू मस्ट, यहाँ पे राइजिंग है या फॉलिंग है? ओ यू मस्ट, फॉलिंग लग रहा है ना? फॉलिंग ही है, फॉलिंग ही है। और कहा भी गया है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें लगभग फॉलिंग टोन ही मिलते हैं। और तो एक तरीके से फॉलिंग टोन है, ओ यू मस्ट, ओ यू मस्ट, यू मस्ट यानी यू मस्ट पे ज्यादा न करके यू उधर खत्म नहीं किया, मस्ट को हम शुरू भी कर दिए हैं। तो ये भी तरीका है पहचानने का। तो ओ यू मस्ट इस सेंटेंस में आपको देयर इज अ फॉलिंग टोन। तो अभी ये चीजें क्लियर है, फॉलिंग, राइजिंग, फॉल एंड राइज। आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ग्रामर जंक्शन आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा, तो ऐसे में ग्रामर जंक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। क्योंकि एक काम कर देता हूँ, ग्रामर जंक्शन में आपको फिलहाल समझा देता हूँ। इन द ग्रामर जंक्शन वी हैव टू टॉक अबाउट द complex preposition. If we read the lines that have been taken from the poem, can you read this one? Prashant, बेटा माइक ऑन करो जरा, आप भी पढ़ो। And out beyond those bars, the empty air. Can you guess the parts of speech of the word out and beyond? Okay. And out beyond those bars, the empty air. Can you guess the part of speech of the words out and beyond? बहुत ही सिंपल है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? Preposition. Preposition है। Now look at these lines. अब आप दूसरी लाइन की तरफ देखें। I ran out the door when I heard him coming. You need to think beyond the story. यहाँ पे भी जो आपका बोल्ड फॉर्मेट में आउट और बियॉन्ड, ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच ही है। ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये प्रीपोजिशन ही है। समझने की जो बातें हैं वो यहाँ पे लिखी है। The words out and beyond are simple preposition. जो वर्ड और बियॉन्ड है वो तो आपका प्रीपोजिशन है, यानी सिंपल प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है इन द सेंटेंस, जिसको हम प्रीपोजिशन के नाम से ही जानते हैं। The same words in the first example have a different meaning. ये यहाँ पे आउट और ये यहाँ पे बियॉन्ड, ये दोनों प्रीपोजिशन है, लेकिन जो आपका पहला यहाँ पे पोएम है, पहले लाइन में जो आउट और बियॉन्ड जब साथ में आ रहे हैं तो इसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। The first example have a different meaning and act as one unit. यहाँ पे क्या आउट और बियॉन्ड दो अलग अलग प्रीपोजिशन है, दोनों के अलग अलग मीनिंग है, दोनों के अलग अलग एक्ट है, लेकिन आउट और बियॉन्ड दोनों मिलकर के एक स्पेशल मीनिंग यानी एक स्पेशल एक्ट निकालते हैं, मतलब उसका मतलब निकलता है। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। सच वर्ड्स आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर के, स्पेशली प्रीपोजिशन और वर्ड या प्रीपोजिशन वर्ड प्रीपोजिशन, ऐसा भी हो सकता है, बोला जाता है ना कि as soon as possible, तो as soon as भी आपका एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। as आपका प्रीपोजिशन यूज हुआ, soon आपका एक सिंपल सा वर्ड यूज हुआ, as फिर से आपका प्रीपोजिशन यूज हुआ। तो दैट मींस कि जब प्रीपोजिशन और वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर के प्रीपोजिशन की तरह यूज हो तो वो आपके कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाएंगे। इतना क्लियर है? Yes, sir. For the definition, a complex preposition is a two words or three words unit that function as a single word preposition. जो complex preposition होंगे वो दो वर्ड या तीन वर्ड वाले एक ऐसे यूनिट होंगे, ऐसे इकाई होंगे that function, जो कि फंक्शन करेंगे, काम करेंगे कैसे?
एज ए सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन की तरह काम करेंगे. अब कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. द फर्स्ट वन इज द टू वर्ड प्रीपोजिशन, जिसमें वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन होगा. फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, अलोंग विथ, बिकॉज ऑफ. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार. अलोंग विथ हिज सिस्टर, ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट अलोंग विथ हिज सिस्टर. तो अलोंग विथ आपका यहाँ पे क्या हुआ, उसके साथ. एक यानी एक तरीके से वहां पे पोजीशन ही दिखाया जा रहा है, संबंध नहीं दिखाया जा रहा है ना उनके साथ. तो अलोंग विथ का अलग अलग मतलब नहीं है वहां पे. अलोंग विथ का एक ही मतलब निकल रहा है. अलग अलग प्रीपोजिशन, वो दोनों प्रीपोजिशन मिल करके आपका एक सिंगल प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है. इसी तरह थ्री वर्ड प्रीपोजिशन होता है, जिसमें आपका सिंपल प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस सिंपल प्रीपोजिशन, तीन वर्ड से मिलकर के ये सिंगल यूनिट बने होते हैं. क्या होता है, फॉर एग्जांपल in accordance with, in addition to, in front of, in spite of. So these are the some of the types of three word preposition. What you all are supposed to do, you all have to go through these two word preposition and three word preposition. ये कुछ examples हैं जिनके कुछ मतलब हैं. along with के लिए example दिए गए हैं. would you like to have toast along with the coffee? क्या कॉफी के साथ आप टोस्ट भी लेना पसंद करेंगे? As per का मतलब क्या, I assemble the robot as per the instruction. मैंने रोबोट को असेंबल किया as per the instruction, इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमने रोबोट को असेंबल किया, इंस्ट्रक्शन के अनुसार. नहीं as per, as per के अनुसार, along with के साथ. हिंदी मीनिंग अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, बट ये सारे आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स जरूर आप पढ़ के आइएगा, जिससे कल की क्लास में हम लोग सीधा एक्सरसाइज डिस्कस करें. ओके, एग्जांपल जरूर पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आइडेंटिफाई करना है सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. मैं जितना पढ़ा दिया हूं आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब इसमें क्या होगा, कंप्लीट द, ये सेकंड क्वेश्चन में हर कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि आप एज ऑफ यूज करेंगे या एज फॉर यूज करेंगे, प्रायर टू करेंगे या प्रायर ऑफ करेंगे. ऊपर से आप इसको भी देख करके कंप्लीट कर सकते हैं. बुक से के भी क्वेश्चंस को आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं. आप लोग करने की कोशिश भी करिएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस जब करूंगा तो सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं सही होगा तो दोबारा रिकरेक्ट कर लीजिएगा. तो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन यही नहीं, आपका ग्रामर स्टेशन में भी है, तो ग्रामर स्टेशन वाला भी आप लोग चेक करिएगा, मतलब देख लीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा. यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि यहाँ पे आपका मतलब भी बताएगा. बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ का क्या मतलब है, इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे दिया है, इन केस ऑफ का क्या मतलब है, क्या यूज है. तो यू ऑल हैव टू गो थ्रू दीज एग्जांपल्स so that in the next class we can discuss and complete the exercise of book grammar junction and grammar station as well. Okay, Yes, sir. so that's all for today. Is there any query, any question? No, sir. चलिए बेटा, ग्रामर जंक्शन ग्रामर स्टेशन की तैयारी करके आइएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा सारे एग्जाम्पल. दोनों सेक्शन हमने नेक्स्ट क्लास